अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह दरूद सलाम की थोड़ी निशात फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। क्यों ना उनके नाम पर सब कुछ फिदा अपना करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें। बख्श देना उम्मते महबूब को है मेरे रब, बस दुआ मेरे खुदा से हम यही मांगा करें। हम अल्लाह के बाबरकत नाम से इस तकरीब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तिलावत कलाम के लिए आएंगे जनाब असदुल्ला साहब। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. बहुत शुक्रिया। मुझको भी सरकार की मिदहत सराई हो अता, फूल बनकर लफ्ज़ मेरे मुंह से भी निकला करें। मिदहत सराई के लिए सर्वे जनाब तारिक मसूद साहब से गुजारिश है कि वो नाते रसूल वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके सामने प्रोफेसर इकबाल अजीम की लिखी हुई नात पाक पढ़ने की जसारत करूँगा। बिल्कुल नहीं जा रही है आवाज़। जी अब आ रही है? ठीक बेहतर है। प्रोफेसर इकबाल अजीम की मैं नात पाक पढ़ने की जसारत करूँ जो बाद में नबीना हो गए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी नात पाक लिखी है। तो मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मावे इल्तिजा मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ।
گا اس جگہ سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا میں محفل حرم کے طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا میں محفل حرم کے مختار سے اقبال اب بھی مجھے کو محسوس ہو رہا روضے کے سامنے ہوں، روضے
نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کی سبحان اللہ اگلا میرے پاس کچھ پڑھنے کے بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی تو میں آپ کی کتاب مستعار دوں گا. خاک بشر کی بات سمجھنے کی بات ہے. ابھی نہیں مطلب خاک بشر کی بات سمجھنے کی بات ہے، آدم کی واردات سمجھنے کی بات ہے. اب دست غیب پہ ایمان چاہیے، آسان ہے مشکلات سمجھنے کی بات ہے. علامہ اقبال گلوبل فورم کے بانی اور نیو یارک اردو انجمن کے صدر، 6 شعری مجموعوں کے خالق، ادب، تصوف اور طب میں مہارت، ہمہ جہد شاعر، نعتیہ، کلام، ترانے، غزلیں، نغمے اور مزاحیہ شاعری میں ایک مفرد نام، جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عرب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ صاحب صدارت کی مسند پر تشریف لائیں. اور جناب حلقہ ارباب ذوق اس کاٹوے نیو جرسی کے صدر بھی ہیں. ہمارے محترم دوست پاکستان نیوز نیو یارک میں کالم، روحانی کالم لکھتے ہیں، جناب سید کاظم رضا شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائیں. جس نے دیکھا ایک نظر محبوب کو میرے جمال، پہلے وہ بے خود ہوا اور پھر وہ شاعر ہو گیا. جمال احمد انجم صاحب نے ایس ایم لا کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کی، پھر 20 سال تک وہ کراچی میں پریکٹس کرتے رہے، پھر وہ کینیڈا امیگریٹ ہو گئے، پھر وہاں پر مضمون بھی لکھتے رہے ڈان میں اور شاعری کرتے ہیں. 2 کتابیں شعری مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں، دشت خیال اور ورگ ورگ زندگی، اور نثر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پیغمبر اعظم کے نام سے چھپ چکی ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کی تقریب کے مہمان اعزازی کے طور پر یہاں پر تشریف لائیں. جمال احمد انجم صاحب پبلشر ہیں، کلاسک پبلشر ٹورنٹو کے نام سے کتابیں بھی پبلش کرتے ہیں. اب میں جس تقریب کی انتظامیہ لائف لائن ایڈلٹ ڈے کیئر کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت تقریب منعقد کی. حلقہ ارباب ذوق اس کاٹوے نیو جرسی نے ان کے ساتھ تعاون کیا. ان کے مینیجر جناب سعد مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تقریب کا ابتدائیہ کے طور پر یہاں پر آ کر الفاظ متشکر ادا کریں. جناب سعد مسعود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس مجھے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف یہ کہنا تھا کہ بہت عرصے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کچھ پروگرام ہوں. کوشش ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کچھ نہ کوئی ہر مہینے پروگرام کر لیں. لاسٹ منتھ ہم نے امام جواد کو یہاں مدعو کیا تھا، اور یہ شاہ نواز ڈے کیئر سینٹر ہے، یہ پرانا والا جو کہ یہاں پہ اب ہم نے موو کیا تھا تقریباً 1 سال پہلے لائف لائن ایڈلٹ ڈے کیئر کے ساتھ کے نام سے. اور الحمدللہ ہمارے ممبرس بڑھ ہی رہے ہیں اور اچھے خاصے ہو گئے ہیں. سبھی کی خواہش تھی کہ کچھ شاعرانہ پروگرام بنے. اتفاق کی بات ہے کہ عنایت صاحب کے بھائی یہاں تشریف لے آئے، انجم صاحب کینیڈا سے، تو ان سے ملاقات ہو گئی. تو ہم نے فوراً ہی عامر بھائی سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی عامر بھائی بہت کم ٹائم ہے، تو اس کم ٹائم میں جو کچھ انتظام کر سکیں ہم لوگ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ اس سے مستفیض ہو سکیں گے جو بھی ہیں یہاں پہ.
तो आगे भाई बहुत शुक्रिया। ये बहुत मेहनती बंदे हैं, अपना जॉब भी करते हैं और यहाँ पर भी काम करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इनके अपने पेरेंट्स भी यहाँ पे डल डे केयर का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली तकरीब में जमाल अहमद अंजम साहब की 2 किताबों की तकरीब रुनुमाई मुनक्कद होगी, एक दस्ते ख्याल और वर्क वर्क जिंदगी, उसके बाद हल्का फुल्का मुशायरा होगा आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया। शोहरत याफ्ता स्कॉलर और अदीब और शायर तस्लीम इलाही जुल्फी साहब जमाल अहमद अंजम के बड़े मुतक़िद हैं। वो अपने इनके लिए लिखते हैं कि कहा जाता है कि शायर के मिजाज की मरहून मिन्नत होती है। इस रोशनी में अगर जमाल अहमद अंजम साहब की शायरी का जायजा लिया जाए तो यकीनन इसमें इनका सलूक आहम, शगुफ्ता ज़ुबान, पाकीज़ा ख्यालात व किरदार, जज्बा इसार वफा वगैरह गर्ज के ये सब ही कुछ नजर आएगा। इस लिहाज से शायद ये कहना गलत ना होगा कि शायरी की ये शनाख्त अपने खालिक की बोलती हुई पहचान है। जमाल अंजम का तखय्युल बुलंद, निज़ाम दूररस, फिक्र अमीक, दिल असली हसीयत से मामूर है। वो जिंदगी की सच्चाइयों और अर्जी मसाइल से बहस करके ज़हन इंसानी को बेदार करने की फिक्र करते हैं। ये मैं आप किताब और साथी किताब पर कुछ बात करने के लिए मेहमान खुसूसी जनाब सैयद काज़म रज़ा साहब को दावत दूंगा कि वो कुछ कहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर बेग साहब और आप तमाम हाज़रीन कराम तशरीफ़ लाए और एक रौनक महफिल, एक ऐसी यादगार महफिल का इनेकाद किया जिसके तमाम काबिल तहसीन हैं। और डॉक्टर आमिर साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और मसूद साहब का मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हर लिहाज से इसके लिए कोशिशें की। देखिए, किताब पे तबसरा करना कोई आसान काम नहीं है जब तक आप उस किताब को ना पढ़ें। और मेरी ये थोड़ी खुशकिस्मती नहीं रही इस मामले में कि किताबों को मैंने नहीं पढ़ा। बहरहाल साहिब किताब के बारे में डॉक्टर आमिर साहब ने मुझे तारुफ कराया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अदब शुमाली अमेरिका में ज़िंदा है और इन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। जिस तरह ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, इसी तरह जो शायरी का पस मंज़र है वो बहुत कदीम है। वो हिंदुस्तान से लफ्ज़ों पे ही मुबनी नहीं है बल्कि उसमें हमारा मजहबी अंसर भी मिलता है। वरना शायरी तो आगाज़ इस्लाम से कबल भी मौजूद थी और अरब माशरे में भी मौजूद थी और उसके अलावा ईरान में मौजूद थी और दीगर जो अक़वाम थी उनके यहाँ भी अशआर मौजूद थे जो कि हमें जम्मू के मुख्तलिफ मराहिल में उसका देखने को मौका मिलता है। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। शायरी क्यों ज़रूरी है? ये हरफों का मजमूआ है, इसके क़वानीन है। जो शेर कहा जाता है उसकी तकनीकी इस्लाहत होती है कि वज़न में पूरा हो, उसमें काफ़िया, रदी, इल्म अरूज़, इन सब को जब आ जाए तो शायर एक शेर तख्लीक करता है और उसकी उस ज़माने में और इस ज़माने में ज़रूरत क्यों है। जब आप बहुत बड़ी बात को, वाक़े या दास्तान को मुख्तसर करके पेश करना चाहें तो उसको 1 या 2 सत्रों में जब आप बयान कर दें, इस फन को शायरी कहा जाता है। जो मैं समझाऊँ तो फ़ी ज़माना हर किसी को वक्त की किल्लत है। आपको एक लंबी दास्तान बयान करने के बजाय उसको मुख्तसर किसी खुद की खूबसूरती बयान करनी हो, हमदो सना हो और तो आप शायरी का सहारा लेते हैं। तो इस कलील वक्त में, महदूद वक्त है सबके पास, तो उसके लिए शुराए कराम अशार कहते हैं और अपने पैगाम को मुख्तलिफ अरकाम तक पहुँचाते हैं और अपनी एक बड़ी तनकीदी को समेट के आपको 2 सत्रों में और चंद अशार में पेश करते हैं। ये उनका बड़ा कमाल है। ये बड़े साहिब कमाल लोग होते हैं और इसके लिए मैं जमाल अंजुम साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि आपने अदब की आबियारी की। आपकी ज़रूर जब किताब पढ़ेंगे उस पर तफसीली आपको कमेंट्स देंगे। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और यहाँ के सारे हाज़रीन को और सारे मुंतज़मीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने का कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सैयद काज़म रज़ा साहब।
میں تقریب کے صدر جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے گزارش کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ کتاب اتنی مختصر وقت میں کتاب کا تبصرہ اور صاحب کتاب کا تبصرہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مبارکباد دی جا سکتی ہے. کتاب پڑھنے کے بعد اس کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے، لیکن حاضرین کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو میں جناب صدر مجلس جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اپنے الفاظ میں. گلشن دیر میں اگر جوئے مائے سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو. چند الفاظ میں پیغام جس انداز سے شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے، نثر کے لیے یہ کام ذرا مشکل ہے. گو آج صبح میں نے نثر میں ایک جملہ سنا مشتاق یوسفی صاحب کی زبان سے، تو میں اس وقت چونک گیا کہ نثر کے اندر بھی اس طرح کی خاصیت پیدا کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا، اور مجھے اس پہ مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یوسفی صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تھا، مولویوں میں اور سانپوں میں ایک بات بتائی جا سکتی ہے کہ ان میں فرق ہوتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے. میں سمجھ گیا. اب دیکھیے کہہ کیا رہے ہیں، الفاظ کہاں جا رہے ہیں. شعر بھی کبھی کبھی اتنی خوبصورتی سے نہیں کہا جا سکتا جس طرح انہوں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اور الزام اور کیا کہتے ہیں اس طرح انگلی بھی نہیں انہوں نے اٹھائی. بہرحال یہ کل مجھے حضرت کا فون آیا عامر بیگ صاحب کا کہ یہ یہاں پہ ایسا ایک واقعہ ہونے والا ہے. میں نے کہا کہ ورکنگ ڈے، پھر دوپہر، کھڑی دوپہر، اور اس کے بعد کتابیں بھی موجود نہیں ہیں ہاتھ میں، تو کیا صاحب تصریف کے ساتھ ہم کوئی اچھا سلوک کر سکیں گے اور ان کے ساتھ اس طرح کے ہونا چاہیے. ان کی کتاب سے کچھ باتیں ہم جو ہے وہ پیش کرتے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ حالات جس طرح ہمیں اگر تھوڑا بہت پش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے حاضر رہنا چاہیے. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ واقعی نئے راستے تو ہمیں اس نئے مقام پہ نکالنے ہی پڑیں گے، اور یہ بھی ہمت کی بات ہے. انکار کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کو اکاموڈیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس خوبصورتی کے ساتھ عامر بیگ نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، کمال کی بات ہے. میں جتنی بھی تعریف کروں اس نوجوان کی وہ کم ہے. ماشاءاللہ یہ ایک تنظیم کے اندر صرف اس کی بیک بون ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ایسی نئی چیزیں یہ کر رہے ہیں، اور بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں ایک بات ذاتی حوالے سے کر دوں کتاب کے آنے سے پہلے، وہ یہ کہ میں یہاں پہ 1968 میں آیا تھا امریکہ میں. تو اس زمانے میں یہاں اردو کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، کہیں اخبار بھی یہاں پاکستان سے نہیں آتے تھے. ابھی PIA کی فلائٹیں وغیرہ جو ہیں شروع نہیں ہوئی تھی وہاں پہ نیو یارک میں کھلی. ہفتے میں ایک آنے لگی، اور وہ آ کے ٹائم سکوئر میں آپ نے جو ایک وہاں پہ بک سٹال تھا، تو وہاں ایکسٹرا جو ان کے
बची भी होती थी जंग अखबार या कोई, वो वहाँ पे वो रख देते थे। और उनको कहा गया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ होना चाहिए उर्दू के लिए, तो बजाय इसके कि वो फेंक दें वहाँ रख देते थे। तो उस वक्त से लेके अब तक जिस तरह उर्दू का सफर इस मुल्क में हुआ है, जितनी तेजी के साथ उर्दू फैल रही है यहाँ, आपको शायद इसका एहसास ना हो। मेरे बच्चे जो कि यहाँ ही पैदा हुए थे, अब वो 50 वर्ष के करीब हैं, और उनके बच्चे भी। और मुझे पता है क्योंकि उनकी तरबियत के दौरानिए में मैं काफ़ी यहाँ के जो निज़ाम है मेडिकल सोसाइटी का हो या एजुकेशन सिस्टम का हो, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ माशाअल्लाह। तो हमने बच्चों को उर्दू वगैरह के भी सिखाने के लिए मसाजिद के अंदर इंतजाम किए, फिर कल्चरल सेंटर्स के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भी, जैसे कभी तो कर चुके होंगे, हर कम्युनिटी में लाइब्रेरी होती है। अगर आप जाके उनसे कहें कि मुझे उर्दू की कोई किताब यहाँ से लाइब्रेरी से बारो करनी है, अगर उनके पास नहीं है तो वो कहेंगे कहाँ से लाएं। अगर कोई बताओ तो हम खरीदेंगे और रखेंगे ताकि आप पढ़ें, क्योंकि आप टैक्स देते हैं और लाइब्रेरी आपके लिए मुफ्त होती है जहाँ पे आप रह रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आप अंदाजा कर लें कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी कम्युनिटीज हैं और कितनी लाइब्रेरीज हैं, फिर कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं। अगर कोई बच्चा कॉलेज में कहे मुझे उर्दू ऑप्शनल लैंग्वेज लेनी है, उनको पढ़ाना पड़ता है। अगर 3-4 बच्चे कह दें तो उनको वो इंतजाम करना पड़ता है। तो आप सब हजरात टीचर हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी अगर हैं आप जिस जगह पर रहते हैं, अगर ये फैसिलिटीज वहाँ पर बच्चे मांगे तो आप सब के लिए काफ़ी माशाअल्लाह यहाँ पर काम करने को है और ये चल रहा है। उसके लिए किताबें तैयार करना, इन बच्चों के लिए उर्दू सिलेबस के लिए, उर्दू ऑप्शनल के लिए किताबें तलाश करना, किताबें प्रोवाइड करना, ये बड़ा अहम काम है। उसमें ये है कि बच्चे सारे अल्फाबेट जो है वो हिंदी में या उर्दू में नहीं कर सकते, तो इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन में भी लिखना पड़ता है उनके लिए। बहरहाल ये मैं ऐसे ही फिजाई बात नहीं कर रहा, इसकी ज़रूरत है इस मुल्क में। मेरी बेटी ने मेडिकल कॉलेज के अंदर उनसे कहा कि मैं उर्दू ऑप्शनल लेना चाहती हूँ वहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे गालिब की गज़लें उसको सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो उससे मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये काफ़ी यहाँ पे गुंजाइश है उर्दू को फैलाने के लिए। तो उसके लिए जो लोग यहाँ पहले आ गए हैं, जैसे आमिर आ गया है, हम हैं यहाँ, हमें उसके लिए सिलेबस तैयार करना है और कर रहे हैं, काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ आगे करने का काम है। तो उर्दू के हवाले से हम पूरी उम्मीद है। जहाँ तक इनकी किताबों का ताल्लुक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको देखा है, गेटअप के हवाले से, फिर जिस तरह इन्होंने तरतीब की है किताबें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हल्का सा मैंने पढ़ा है और इनका उसलूब मैंने देखा उर्दू के अंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने दोनों किताबों का आगाज़ किया है। तो मैं अभी क्या कहते हैं, इतना क्या कहते हैं इश्तियाक में हूँ कि कब मुझे फुर्सत मिले तो मैं इनको मुकम्मल तौर पे कवर टू कवर पढूं, क्योंकि उर्दू किताब जो है यहाँ पे आजकल की जो नई तख्लीकात हैं, एक नए ज़माने की ये अक्कासी कर रही है वाकई। इससे पहले रवाजात कुछ और थे, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं उर्दू के अंदर जो एवोल्यूशन हुई है, कुछ तो उसमें थोड़ी खराबियां हैं, लेकिन किताबों में नहीं आती। वो जो इंटरनेट हमारा कर रहा है या वेबसाइट वगैरह कर रही है, वो आवाज़ से वो ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो लगता है कि गलत लिखते हैं, लेकिन वो तो साउंड और से है, और वो अगर कहीं परमानेंट उसकी इम्प्रिंट नहीं जाता तो उर्दू को नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन जो तबाशुदा कलाम होता है उसके अंदर अगर हालात हों तो वो बड़ी परेशानी का बायस होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि तबाह करने से पहले कलाम को किसी पढ़े लिखे या उस्ताद किस्म के शायर को दिखा देना चाहिए, ताकि वाज़ेह गलतियाँ ना हो,
اس کی وجہ ایک ہی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ رہی ہے وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، وہ پرنٹڈ مٹیریل آٹومیٹکلی ڈرا کر کے اس کو سند سمجھ کے پیش کر دیتے ہیں، اور اگر اس میں اغلاط ہوں تو پھر وہ اردو کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس لیے پرنٹڈ مٹیریل کے لیے محتاط رہنا پڑتا ہے. باقی جو ہے وہ اردو بول چال، اردو زبان جو ہے وہ تو ایوالو ہوتی ہے. بول چال کے اندر اردو میں رات پار اگر بندہ کر بھی دے تو وہ اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، لیکن جو طبع شدہ کلام ہے اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ احتیاط کی ہے. اس میں مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں کچھ میں کلام کر سکوں. بہرحال میں باقی حضرات جن کے پاس جنہوں نے اس کو پڑھا ہے ان کی آراء سن کے میں انشاءاللہ محظوظ ہوں گا. عامر بھائی اور کیا کیا جائے؟ میں آپ نے بہت اچھی سمیٹ دیا. ایک پیغام اور دینا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ایک ایسے ادارے کی ہے، اور اس کے لیے میرے پاس خاکہ بھی ایسا کچھ ہے، لیکن مجھے اس کے لیے راہبر جن کو کہنا چاہیے یا وہ ان کی تلاش ہے. وہ یہ ہے کہ نعتیہ کلام کے اندر زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ نعتیں کہہ تو دیتے ہیں، اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں، لیکن شاید صاحب نظر جو لوگ ہیں، اہل نظر جو لوگ ہیں، وہ اس کو گستاخی سمجھیں اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. تو اگر ایک ایسا ادارہ ہو نا جو ایک یعنی سرسری نظر، کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شعر ایسا ہے کہ جس کو ذرا بہتر طریقے سے کہا جا سکتا ہے، گستاخی کا گمان نہیں ہوتا، تو وہ مشورہ دے سکیں کہ اگر آپ چاہیں تو اس شعر کو ایسا کر سکتے ہیں. مقصد کسی کو روکنے کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور میں چونکہ مجھے نعتیہ ہی، میری شاعری نعتیہ کلام سے شروع ہوئی تھی اور مجھے نعت کا ہی شوق ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں کہ نعتوں کے اندر کچھ لوگ اس طرح کی بات لکھ دیتے جو اگر نہ لکھتے تو بہتر تھا، تو تھوڑا دکھ ہوتا ہے. ایک اگر ترمیم ایسی ہوتی، کہیں بھی آپ پرنٹ کر رہے ہیں، پرنٹر کو بس ایک فٹافٹ دکھا دے اس کو پی ڈی ایف فائل میں، تو وہ دیکھ لے، تو اگر تو وہ اس میں کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے تو اس کو کہیں گے یہ شاید کر دے. اگر کہیں مشورہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ وہ ٹھپا لگا دے کہ ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور مصنف نے یا کہنے والے نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں اختلاف ہوں. تو وہ ادارہ بڑا کام کرے گا. آج تک نہیں ہے کہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑے چند عرصے کے بعد اس کی خبر آ جائے کہ ایسا ادارہ آ گیا ہے کہیں. اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہوگی. بہت شکریہ. بہت یہ بڑی بہتر بات انہوں نے کی ہے. یہ اس کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے اور اس کی ترویج بھی ہونی چاہیے، تاکہ جو بہت سارے نعتیہ کلام ایسے ہیں جس سے بجائے کہ ایک تعریف ہو، اس میں تھوڑا سا اس کا احتمال رہتا ہے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے اور کہیں بدعت نہ ہو جائے. یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں جو ہے کہیں شرک کا عنصر بھی نہ آ جائے. میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اب صاحب کا، یہ جو انہوں نے بتایا ہے ہمیں. میرے خیال میں یہ اس لیول پر ہو جانا چاہیے اگر کوئی حکومتی سرپرستی کر سکے، جیسے ترقی ادب ہے یا لٹریری حکومتی سرپرستی میں جو سوسائٹیز چلتی ہیں وہ اس کے اوپر نظر رکھیں. جیسے ہمارے وہاں پر سینسر بورڈ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر کرنا چاہیں کرتے ہیں بہتر یہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب کی رونمائی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھائی سے بھی گزارش ہے، ڈاکٹر محمد علی آپ بھی آ جائیں تو ایک تصویر لے لیتے ہیں باقاعدہ رونمائی. پھر اس کے بعد جو ہیں وہ مہمان اعزازی سے ان کی شاعری بھی سنیں گے اور ان کا تعارف بھی مکمل کروائیں گے.
पढ़ने वाला तो नहीं नहीं आप नहीं सामने सामने ऐसे तो आता है इसलिए है ना वो बेग साहब हाँ सहमत ना मेरे भाई साहब को अगर आप जरा से हाँ उनको नायब भाई आप जाइए नायब भाई आप जाइए नायब भाई आप जाइए। ये बड़े हैं हाँ आप भी यहाँ पर आइए। किताब खराब रखें ताकि कैसे रखें ऐसे ऐसे, हाँ। अच्छा बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया आप लोग का। एक बाकायदा रुनमाई हो गई हमारी तरफ से। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका जनाब बहुत शुक्रिया चलो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लें अंजम। चलो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लें अंजम। ये लम्हा आफियत का फिर हमें मिलना हो या ना हो। इतनी कम मुद्दत में जमाल अहमद अंजम साहब का तारुफ मुमकिन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की। कुछ हमें वक्त की भी किल्लत है और मैं साहब भाई को देख रहा हूँ कि वो उनका पास टाइम वैसे कम होता है और उनका टाइम कीमती है। वो यहाँ से मतलब ये कि जॉब पर भी अपना जाते हैं करते हैं और यहाँ पर भी अपना काम करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। उनकी ये जो है काविश अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। मैं जनाब जमाल अंजम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारुफ अपना कलाम सुनाने से पहले मुकम्मल तारुफ हाज़िरीन मजलिस को अपनी ज़ुबानी ज़रूर करवा दें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे दरमियान में एक कितना बेहतरीन शायर और नसर नगार मौजूद है। बहुत शुक्रिया। खड़े को बोलूँगा जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए इसलिए मेरे पैरों में तकलीफ है ना अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आप सब लोगों के शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता फरमाया है कि मैं अपने मुताल्लिक़ कुछ कह सकूँ। ख़ास तौर पे हमारे अब्दुर्रहमान साहब, हमारे जो सदर हैं इस इदारे के, आमिर बेग साहब और दूसरे अहबाब, मैं आप सब जी सैयद काज़म साहब जी और दूसरे सब, चूँकि मुझे इल्म नहीं है, मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस तकरीब में शिरकत कर रहा हूँ, तो तमाम हज़रात ख़वातीन का बेहद मशकूर हूँ। साथ साथ बैठे हुए हैं पीछे जो करता धरता हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग ने सन 2000 में जी हाँ हम कनाडा आए थे। मुख्तसरन मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा सिर्फ कि हम 10-12 साल एडमिंटन अल्बर्टा में ठहरे थे और हम टोरंटो में हैं 10-11 साल से। टोरंटो को शहर उर्दू कहा जाता है। मैं इसके मुताल्लिक़ अभी गुफ्तगू करूँगा। हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने बड़ी अहम बात की है। असल में अपने मुताल्लिक़ हम सिर्फ इतना ही कह देंगे जैसे कि आमिर बेग साहब ने कहा है, तो मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि कराची तक मेरी तालीम कराची में हुई, पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद हिंदुस्तान में। मेरी सारी तालीम तरबियत कराची में हुई। कराची में एक बहुत मामूली सा लेकिन बहुत अहम स्कूल था, तालीमगाह सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से हमने मैट्रिक पास किया था। इंटरमीडिएट हमने इस्लामिया से किया, इस्लामिया लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। तो मैंने कोई 24 साल लॉ की प्रैक्टिस की। मैंने एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी मेरी, मैंने उसका कारोबार भी किया। यहाँ आए, बहरहाल जो कुछ भी था यहाँ बच्चों का जो सबके साथ मसाइल होते हैं ना, उनकी तालीम तरबियत शादी ब्याह वो सब हो गया। मैं कुछ लिखता लिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि आपके सामने मैं कोशिश करूँगा कुछ पढ़ूँ इसमें से। एक किताब पैगम्बर आज़म मैंने अलबत्ता ये कि काफ़ी मकबूल हुई है। अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं ये किताब लिख सकूँ। बहरहाल ये कैफियत थी। हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने एक बहुत अहम बात अभी कही उर्दू के मुताल्लिक़, जो मैं भी अक्सर औक़ात कहा करता हूँ
کہ ہم لوگ اردو پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے. ہمارے بچے اردو نہیں بولتے، بولتے بھی ہیں تو غلط سے اردو بولتے ہیں. ٹورانٹو میں اردو کے اوپر، اردو زبان پہ، اردو لٹریچر پہ، ادب پہ، فن شاعری پہ بہت کام ہو رہا ہے. وہاں پہ جیسا کہ ابھی عبدالرحمٰن صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک ادارہ جیسے ہونا چاہیے. ہمارے یہاں باقاعدہ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں محنت کی جا رہی ہے، کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ وہ صاحب اردو سے کم ایسا روشناس ہوں کہ اپنا معافی و ضمیر تو ادا کر سکیں ٹھیک سے. یہ کیفیت تھی. بس یہی کچھ مجھے عرض کرنا ہے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکر گزار ہوں. آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حضور میں عرض کرتا ہوں. وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہم میں کچھ ایسی تھوڑی 2-3 غزلیں کوشش کروں گا کہ پڑھ دوں. اس سے پہلے ایک نعت کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. تو خاتم پیمبری تو ہے محیط عرض و عرش. تو خاتم پیمبری تو ہے محیط عرض و عرش. تو فخر کائنات ہے، تو انوری، تو سروری. تو میزبان شوق ہے، دریا دلی کا بحر ہے. میرے نصیب میں ہے کب میرے حضور حاضری. اور دستے طلب ہے وا میرا، میں ہوں فقیر راہ گزر. دستے طلب ہے وا میرا، میں ہوں فقیر راہ گزر. میری طلب میرے رسول بس ایک نگاہ دل بھری. تو شارح گیتی بھی ہے، تو شافع محشر بھی ہے. تو راز کائنات ہے، تو ہے نوید روشنی. دنیا کے کسب و جہل میں اور ظلمتوں کی رات میں تو برتر و عظیم ہے. تو ہے شکست کافری. بہت شکریہ. بہت صاحب یہیں پہ ایک غزل. جی آپ شوق سے جو آپ کی پسند، جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ میں پڑھ دے رہا ہوں. جی آپ کی سارا کلام ہی ماشاءاللہ اچھا، کہیں سے بھی. طوفان سے بنا رکھے، طوفان سے بنا رکھے، لہروں سے بنا رکھے. ماجھی سے ذرا کہہ دو دریا سے بنا رکھے. ماجھی سے ذرا کہہ دو دریا سے بنا رکھے. اور جب موسم گل آئے اور جشن بہاراں ہو، جب موسم گل آئے اور جشن بہاراں ہو، مالی سے کہو جا کے گلچی سے بنا رکھے. معبد ہو کلیسا ہو مندر ہو کہ میخانہ. معبد ہو کلیسا ہو مندر ہو کہ میخانہ. ہر سمت خدا دیکھے اس در سے بنا رکھے. اس در سے بنا. واہ واہ. اور جب ہجر کی وحشت سے کوئی نہ مفر پائے، مہتاب کی کرنوں سے پھولوں سے بنا رکھے. اور کیا پھول سجاؤں میں، کیا گجرے بناؤں میں. کیا پھول سجاؤں میں، کیا گجرے بناؤں میں. وہ سوکھ گئے سارے پہلے جو بنا رکھے. اور کیا جانیے کل کیا ہو، کیا جانیے کل کیا ہو. شہروں کی فضاؤں میں کہہ دو میرے مجنوں سے صحرا سے بنا کے رکھے. ایک لفظ ہی کافی ہے خرمن کے جلانے کو، جو اس سے سوا چاہے شولوں سے بنا رکھے. واہ واہ زبردست. ایک غزل کے اور چند اشعار، غزل کے چند اشعار ہیں. ہم اپنے عزم پہ نازاں سمندر اپنی ضد پہ، ہم اپنے عزم پہ نازاں سمندر اپنی ضد پہ. نہ جانے کون جیتے گا
ابھی تو جنگ جاری ہے. کرو شمع فروزہ جشن کی تیاریاں کر لو. کراچی والے جانتے ہیں جو کراچی کے ابھی کوئی کرو شمع فروزہ جشن کی تیاریاں کر لو کہ اپنے دیس کا اب آخری نیلام جاری ہے. لبوں پہ گیت ہیں ان کے دلوں میں نیش اقرب ہے. لبوں پہ گیت ہیں ان کے دلوں میں نیش اقرب ہے. اداکاری ہمارے دوستوں کی بے مثالی ہے. اور وہ ماتوے شہر ہوں یا ہوں جنوب پیشہ، ہماری تو سبوں سے دوستی ہے، رستگاری ہے. اور خبر ہے گرم ان کو مل گیا منصور یا سرمد. خبر ہے گرم ان کو مل گیا منصور یا سرمد. سنا ہے آج مقتل میں بڑی ہی شادمانی. اور رہے الفت میں سب کچھ لٹ گیا. رہے الفت میں سب کچھ لٹ گیا. لیکن میرے یارو زمیں اپنے وطن کی خون کی اب بھی پیاسی ہے. بس ایک سکے کے دو رخ ہیں حیات و ممات انجم. بس ایک سکے کے دو رخ ہیں حیات و ممات انجم. ممات جسم انسانی فقط نقل مکانی ہے. یہ حضرت میری فرمائش جی میں نے یہ بھی رکھا تھا، میں یہ پڑھتا ہوں. جی جی بہت خوبصورت. جی جی بہت نوٹ کیا ہوا تھا. جی جی بتاؤ. عبد الرحمن صاحب کی خواہش ہے کہ میں یہ غزل پڑھوں. میں عرض کر رہا ہوں. وہ تابندہ تھا، وہ تابندہ تھا، روشن کر گیا شہر و بیاباں کو. کیا بات. واہ واہ. وہ تابندہ تھا، روشن کر گیا شہر و بیاباں کو. اگر کچھ روشنی مجھ کو بھی دے دیتا تو اچھا تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. میری میت پہ سبھی دوست دشمن غیر بھی آئے. میری میت پہ سبھی دوست دشمن غیر بھی آئے. گھڑی بھر کو اگر تم بھی چلے آتے تو اچھا تھا. تو اچھا تھا. کیا بات. اور برستی دھوپ انگارہ زمین پیروں میں چھالے ہیں. برستی دھوپ انگارہ زمین پیروں میں چھالے ہیں. ذرا ابر کرم یہاں بھی برس جاتا تو تو اچھا تھا. اور ہمیں قاتل سے کچھ ایسی شکایت تو نہیں، لیکن عبد الرحمان صاحب قاتل کے لیے شعر. جی جی. ہمیں قاتل سے کچھ ایسی شکایت تو نہیں، لیکن ذرا شمشیر کو کچھ تیز کر لیتا تو اچھا تھا. کیا بات. واہ واہ. ذرا شمشیر کو کچھ کچھ تیز کر لیتا تو اچھا تھا. اور اسی خواہش میں پوری ہو گئی عمر رواں اپنی. اسی خواہش میں پوری ہو گئی عمر رواں اپنی. کوئی ہم شعر کہتے اور وہ کہتے کہ اچھا تھا. اچھا تھا. کیا بات. کیا بات. واہ. اور وطن چھوڑا زمیں چھوڑی بنے ہیں پھر سے ہر جائی. وطن چھوڑا زمیں چھوڑی بنے ہیں پھر سے ہر جائی. نہ کرتے ہجرتوں پہ ہجرتیں اتنی تو اچھا تھا. نہ کرتے ہجرتوں پہ ہجرتیں اتنی تو اچھا تھا. اور بہی کھاتا خدا کے سامنے ہم خود ہی رکھ دیتے. بہی کھاتا خدا کے سامنے ہم خود ہی رکھتے تھے. فرشتوں کو اگر کچھ علم نہ ہوتا تو اچھا تھا. وہ تابندہ تھا، روشن کر گیا شہر و بیاباں. کیا بات ہے. بہت اچھا. ایک اور غزل. جی جی آپ جی جی. محفل آپ ہی کی ہے. محفل آپ ہی کی ہے. ماشاءاللہ. سنائیے. دیار غیر میں جینے کی کچھ سبیل کرو. دیار غیر میں جینے کی کچھ سبیل کرو. ہرا ہے زخم تو بھرنے کی کچھ سبیل کرو. نہ منزلوں کے نشاں ہیں نہ راہبر کوئی.
न मंजिलों के निशां हैं, न राहबर कोई उपाय करो यार, कुछ सबील करो। मसीहा खिज़्र व रहनुमा के मुंतज़िर लोगों, मसीहा खिज़्र व रहनुमा के मुंतज़िर लोगों, खुद अपने दर्द के दरमा की कुछ सबील करो। और वो देखो खौफ से लर्जा है तीरगी के आलम, वो देखो खौफ से लर्जा है तीरगी के अलम, बस एक चराग जलाने की कुछ सबील करो। वो देखो आग के शोले जलाए देते हैं, वो देखो आग के शोले जलाए देते हैं, घरों को अपने बचाने की कुछ सबील करो। और करो वो दावत उल्फत सबों से चाह करो, करो हो दावत उल्फत सबों से चाह करो, कभी हमें भी बुलाने की कुछ सबील करो। और तुम्हारे देश में अंजुम बड़ा अंधेरा है, तुम्हारे देश में अंजुम बड़ा अंधेरा है, चिराग तूर जलाने की कुछ सबील करो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक चीज और पढ़ता हूँ। अच्छा, गवाही दे रहा है दश्त में एक फूल का खिलना, गवाही दे रहा है दश्त में एक फूल का खिलना, कि इन सहराओं के सीने में है दरियाओं का दिलना, कि इन सहराओं के सीने में है दरियाओं का दिलना। ये कैसे लोग हैं जिनको फकत दो काम आते हैं, ये कैसे लोग हैं जिनको फकत दो काम आते हैं, किसी का दिल दुखा देना, किसी का खून बहा देना, किसी का दिल दुखा देना, किसी का खून बहा देना। और ज़माने भर की आवाज़ें मुग़ल कब नींद में अपनी जगाता है हमारे पाँव की जंजीर का हिलना। हमें सब शेर सुनिए कि तुम्हारे ख्वाब बुनने पर कोई कदगन नहीं, लेकिन तुम्हारे ख्वाब बुनने पर कोई कदगन नहीं, लेकिन अबस है नारसा है ख्वाब की ताबीर का मिलना, अबस है नारसा है ख्वाब की ताबीर का मिलना। और रिहाइश गाह तो सभी बना लेते हैं दुनिया में, रिहाइश गाह तो सभी बना लेते हैं दुनिया में, बड़ी मुश्किल हकीकत है कहीं पे घर बना लेना। और वहीं शर्मा के शब ने काकुले गीती समेटे हैं, वहीं शर्मा के शब ने काकुले गीती समेटे हैं, जो देखा जुल्फ की तेरी कभी जंजीर का खुलना। अदालत और मुंसिफ वहीं शर्मा के शब ने काकुले गीती समेटे हैं, जो देखा जुल्फ की तेरी कभी जंजीर का खुलना। अदालत और मुंसिफ तो मिलेंगे हर कदम लोगों, मगर मुमकिन नहीं है अदल की जंजीर का मिलना। रहा अज आदमो ईदम, यही दस्तूर दुनिया का, यही रहा अज आदमो ईदम, यही दस्तूर दुनिया का, कभी तदबीर का करना, कभी तकदीर का रोना। ये दुनिया और अक़बा दोनों ही मिल जाएंगे अंजुम, जरा सर को झुका के कल्ब से तकबीर का कहना। मुझे मालूम है कि आप सब भूखे बैठे हैं और खाना लग रहा है, तो जब तक खाना लगता है कम से कम वाह वाह तो निकल सकती है। खाने के लिए हम लोग भी कहते हैं, हम लोग भी यही बात कहते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप कुछ चाहें तो मैं पढ़ दूंगा अगर आप चाहें। मुझे हर जो भी आप लेंगे, मुझे हर गजल और नज्म अच्छी लग रही है। नज्म भी सुनाए। नज्म सुनेंगे? इसलिए कि नज्म पता है, क्योंकि नज्म का तो आप जानते हैं कि जब उस तक
वैसे आप आखिर तक ना पढ़ें यार, है ना? तो हर किसी पे नज़म पढ़ लें। अच्छा मुझे अच्छा ये पेसिमिस्ट पढ़ दें। हाँ मैं ये भी पढ़ने वाला था, ये पढ़ने वाला था, लेकिन मैं ये नज़्म बाद में पढ़ता हूँ, पहले ये एक और अब्दुर्रहमान साहब ने एक और खूबसूरत गज़ल तलाशी। खूबसूरत उनकी नज़र में है, मैं गज़ल पढ़ देता हूँ। अच्छी बात। फिर वही आवाज़ गुमगश्ता सुनाई दी मुझे, वाह वाह वाह। फिर वही आवाज़ गुमगश्ता सुनाई दी मुझे, मुड़ के मैंने पीछे देखा और पत्थर हो गया। मुड़ के मैंने पीछे देखा और पत्थर हो गया। फिर से अता कीजिए। वाह वाह। फिर वही आवाज़ गुमगश्ता सुनाई दी मुझे, फिर वही आवाज़ गुमगश्ता सुनाई दी मुझे, मुड़ के मैंने पीछे देखा और पत्थर हो गया। 400 खुशबू तेरी रस्तों में थी फैली हुई, 400 खुशबू तेरी रस्तों में थी फैली हुई, जो तेरे कूचे से निकला ऊद और अंबर हो गया। जो तेरे कूचे से निकला ऊद और अंबर हो गया। और फूल से, जुगनू से, कलियों से पता पूछा तेरा। क्या बात है। वाह वाह वाह। अदब फूल से, कलियों से, फूल से, कलियों से, जुगनू से, कलियों से पता पूछा तेरा, देखते ही देखते दफ्तर का दफ्तर हो गया। क्या बात है। देखते ही देखते दफ्तर का दफ्तर हो गया। और जिसने देखा एक नजर महबूब को मेरे जमाल, जिसने देखा एक नजर महबूब को मेरे जमाल, पहले वो बेखुद हुआ, अब वो डिप्टी फिर वो शायर हो गया। डिप्टी कलेक्टर आप क्या होते हैं, हमारे यहाँ शायर हो जाते हैं। बहुत अच्छा। आपकी नजरे इनायत जिस घड़ी जिस पर हुई, आपका हुस्ने करम वो माहो अख्तर हो गया। क्या बात। आपका हुस्ने करम वो माहो अख्तर हो गया, और काफिले को लूट कर खुद ही निगहबा बन गया। क्या बात है। काफिले को लूट कर खुद ही निगहबा बन गया, कम नसीबी कौम की कज़्ज़ाक़ रहबर बन गया। हम नसारा और यहूदी के हुए हैं मुक्तदी, हम नसारा और यहूदी के हुए हैं मुक्तदी, किस्से बदरो ओहद अब वक्फ मिंबर हो गया। किस्सा बदरो ओहद अब वक्फ मिंबर हो गया। पाकिस्तान के गजल के बारे में थी। अच्छा जब वो एक नज्म एक नज्म है, एक नज्म कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम हल्का सा छोटा सा इशारा कर लेंगे। 1 बजे नमाज का टाइम है, फिर 1:30 बजे खाना होगा। बस ये एक नज्म हमारे आमिर बेग साहब ने कहा एक नज्म सुना दीजिए। नज़में बहुत सी हैं, लेकिन बहरहाल एक नज्म है ये, चूँकि मेरा मौजू ही असल में दुख, परेशानी, जहालत, उसरत, नाइंसाफ़ी है। अदालत पे आप यही करते रहे। अदालत में भी नाइंसाफ़ी हो रही है भैया, आप जानते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब तो बहुत ज्यादा हो रही है। अर्ज किया है, उन्वान है यास और आस। यास और आस। कितनी पुरहौल है, पुरदर्द है इनकी दुनिया, कितनी पुरहौल है, पुरदर्द है इनकी दुनिया, जैसे आफात मकाफात का दफ्तर है यही। इनकी मायूस तमन्नाओं के बेकार हुजूम रास्ता रोकते हैं ऐसे जैसे किसी मजबूर के फैले हुए हाथ। निखतो नूर की मानंद गुजरने वालों, निखतो नूर की मानंद गुजरने वालों, रेशमो अतलस व कमखाब पहनने वालों, 20 मंजिल की इमारत में रहने वालों, झांक के अपने बगीचों से कभी देखो तो अनगिनत लोग यहाँ बसते हैं, अनगिनत लोग यहाँ बसते हैं, जिनके हिस्से में फ़कत भूख है, बीमारी है, जिनके हिस्से में फ़कत भूख है, बीमारी है, दर्द है, यास है और रात की तारीकी है, जिनकी झोली में कोई आस नहीं, फूल नहीं, जिनका मकसूम शब रोज़ की तन्हाई। अपनी नुक़वत के महल्लात से बाहर आके
एक कीड़े नुमा इंसान को देखो तो सही, अपनी मतबूह व मजहूल माँ की दवाई के लिए, अपनी बीवी की किसी छोटी सी ख्वाहिश के लिए, कभी नन्हे के लिए, छोटे से लकड़ी के खिलौने के लिए, चंद चांदी के चमकते सिक्कों के लिए, एक गज कपड़ा फकत सत्र छुपाने के लिए बेच देते हैं लहू अपना खुदी ही अपनी, बेच देते हैं लहू अपना खुदी ही अपनी। इनकी सन्नाई ने बख्शा है तुझे हुस्न जमाल, इनकी सन्नाई ने बख्शा है तुझे हुस्न जमाल, इनकी मेहनत से मिला तुझको कमाल और जलाल, इनकी हर सांस तेरे जुल्म पे है नौहा करा, इनकी शहरत पे है जिंदा तेरे दांतों के निशान। गुरेज, असल बात जो कहना चाहता हूँ कि इनकी आंखों के चमकते हुए तारों की कसम, इनकी आंखों के चमकते हुए तारों की कसम, इनकी मेहनत की कसम, इनकी उसरत की कसम, इनके किरदार की अजमत की कसम, जल्द ही वक्त बदल जाएगा, जल्द ही वक्त बदल जाएगा, फिर अदालत में मुंसफी होगी, बस के रुसवाए जमाना होकर तुम गिरोगे जमीन पे मुंह के बल। ख्वाब ताबीर बनेंगे आखिर, गुंजे थे फूल बनेंगे आखिर, और इंसान को इंसान से, इंसान को इंसान से मोहब्बत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने महफिल को जो है चार चांद लगा दिया आपने। अब छोटा सा मुशायरा भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे आए हुए हैं, तो मुशायरा ही था हम लोग ये तो अभी आपकी पसीना ही चल रही थी, अभी तो मुशायरा शुरू होगा, लेकिन मुशायरा मुख्तसर होगा, एक एक गजल होगी। हमारे पास 4 शुरा हैं, तो जनाब तारिक मसूद साहब से गुजारिश है वो अपनी तरन्नुम में पढ़ते हैं। आप 3 शेर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। कहाँ से कहाँ ले गए महफिल को आप, माशाल्लाह। कहाँ से कहाँ ले गए ना, गजल पढ़ने के साथ कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा साहब, मेरी उम्र के हिस्से में ही है, ये जिंदगी पे ही है। उससे बेहतर जानते हैं। यूं गुजरती गई जिंदगानी मेरी, यूं गुजरती गई जिंदगानी मेरी, ढल गई रफ्ता रफ्ता जवानी मेरी, ढल गई रफ्ता रफ्ता जवानी मेरी, यूं गुजरती गई जिंदगानी मेरी। गुल खिला और मुरझा गया बाद में, गुल खिला और मुरझा गया बाद में, दोस्त तो बस यही है कहानी, दोस्त तो बस यही है कहानी मेरी, यूं गुजरती गई जिंदगानी मेरी। देख कर आज लोगों के मकरो फरेब, देख कर आज लोगों के मकरो फरेब, रुक से जाती है खून की रवानी मेरी, रुक से जाती है खून की रवानी मेरी, यूं गुजरती गई जिंदगानी मेरी। बाज आते नहीं अपने तो ही
توہین سے باز آتے نہیں اپنے توہین سے غیر میں کیسے ہو قدردانی میری غیر میں کیسے ہو قدردانی میری یوں گزرتی گئی زندگانی میری ہجر میں جب گزرتا ہے لمحہ میرا ہجر میں جب گزرتا ہے لمحہ میرا کیسے مسعود ہو شب سہانی میری کیسے مسعود ہو شب سہانی میری یوں گزرتی گئی زندگانی میری ڈل گئی رفتہ رفتہ جوانی میری اچھا میں ابھی اس تقریب کو مکمل طور پر مختصر کرنے کے چکر میں ہوں. میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ کو ترنم سے پڑھ کے سناؤں لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور ڈاکٹر اب صاحب جو ہیں وہ مزاحیہ بھی کہتے ہیں تو لفظی پڑھ دیجیے آپ. ہاں تو ڈاکٹر صاحب اور انہوں نے بھی ابھی جو جمال انجل صاحب نے بھی آپ کو ایک دو مطلب یہ کہ کچھ شعر سنائے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی. تو میں بھی ایک مزاحیہ کاوش ہے میری ایک تازہ تو میں آپ کو آپ کی کرتا ہوں جناب صاحب کی اجازت سے کہ خراٹے لینے کا کوئی نقصان تھوڑی ہے. خراٹے لینے کا کوئی راحت الدوری صاحب نے وہ تھوڑی کی ایک گانا تھا تو میں اس کو انہی کو آگے لیا ہے ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. خراٹے لینے کا کوئی نقصان تھوڑی ہے یہ شور تیرے عشق کا اعلان تھوڑی ہے اور گرمی یہاں بھی پڑتی ہے لیکن نہ اس قدر گرمی یہاں بھی پڑتی ہے لیکن نہ اس قدر نیو جرسی ہے یہ آپ کا ملتان تھوڑی ہے. جو کہہ رہا ہے آپ سے دروازہ کھولیے جو کہہ رہا ہے آپ سے دروازہ کھولیے شوہر ہے آپ کا کوئی مہمان تھوڑی ہے اور بیکار جھانکتا ہے تو اپنے پڑوس میں بیکار جھانکتا ہے تو اپنے پڑوس میں تو کیمرے سے بڑھ کے نگہبان تھوڑی ہے. تجھ کو ضرور تن میں بلاتا ہوں اپنی جان تجھ کو ضرور تن میں بلاتا ہوں اپنی جان ورنہ بلائے جان تو میری جان تھوڑی ہے. اور کوشش تو ہم نے کی ہے بہت واٹس ایپ پر کوشش تو ہم نے کی ہے بہت واٹس ایپ پر بلوں کو گھیرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے یوسفی صاحب کے حوالے سے کہا حلوہ کھلائیے اسے اور جان بچائیے حلوہ کھلائیے اسے اور جان بچائیے جو شخص مولوی ہے وہ انسان تھوڑی ہے. حلوہ کھلائیے اسے اور جان بچائیے جو شخص مولوی ہے وہ انسان تھوڑی ہے. اور آپ ہی ہے کہ تیرے حنیت ریب میں آیا نہ آئے گا تیرے حنیت ریب میں پچھلے دنوں حنیت ریب کی باتیں ہوتی رہی ہے تیرے حنیت ریب میں آیا نہ آئے گا عامر ذہین شخص ہے نادان تھوڑی ہے. ابھی میں جمال انجل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک غزل سنائیں تاکہ مشاعری کی روٹین ٹکرائے اور پھر سارے صدارت کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ.
एक और गजल के चंद अशार समाप्त फरमाइए अच्छा, कि कहीं से बूंद मोहब्बत की एक ला दो मुझे, कहीं से बूंद मोहब्बत की एक, कहीं से बूंद ला दो मोहब्बत की एक ला दो मुझे, अलाओ इश्क में कुंदन बनूं जला दो मुझे। क्या बात है। अलाओ इश्क में कुंदन बनूं जला दो मुझे। मैं जानता हूँ कि मुमकिन नहीं मगर फिर भी, मैं जानता हूँ कि मुमकिन नहीं मगर फिर भी, तुम मुझे याद ना आना यही दुआ दो मुझे। और जो भूल जाओ कभी रास्ता मोहब्बत का, जो भूल जाओ कभी रास्ता मोहब्बत का, मैं खिज़्र राहे वफा हूँ सदा दो मुझे। मैं खिज़्र राहे वफा हूँ सदा दो। और असीर गम हूँ मुझे क्या खबर निशात है क्या, असीर गम हूँ मुझे क्या खबर निशात है क्या, अलम नसीब हूँ जीने की ना दुआ दो मुझे। और यही है इल्तिजा मेरी, यही मिन्नत समाजत है, यही है इल्तिजा मेरी, यही मिन्नत समाजत है। कबाए इज्जो वफा फिक्रो नजर अता हो मुझे, कबाए इज्जो वफा फिक्रो नजर अता हो मुझे। और शुनीद है तुम्हें अंजुम से कुछ शिकायत है, शुनीद है तुम्हें अंजुम से कुछ शिकायत है, बशौक मिस्ल गलत लफ्ज तुम मिटा दो मुझे। बशौक मिस्ल गलत लफ्ज तुम मिटा दो मुझे। और कहीं से बूंद मोहब्बत की एक ला दो मुझे। कहीं से बूंद मोहब्बत की, माशाअल्लाह। मोहतरमा फिरदौसी फारूकी साहबा को हम खुश आमदीद कहते हैं। इनकी हाल ही में एक पहली किताब पब्लिश हुई है हज़रत कॉलेज ऑफ स्कॉटवे न्यू जर्सी के प्लेटफॉर्म पर, अफकार व मकालात फिरदौसी। ये नसर नगार हैं, अफसाना नगार हैं, शायर हैं और अभी आपके सामने कुछ अपना कलाम पेश करेंगे। ये इस नज़्म का नाम वफा है। यही नूर इश्क की इंतहा, यही इर्तका व कमाल है। यही नूर इश्क की इंतहा, यही इर्तका व कमाल है कि जफा से आए कोई खिज़ां न वफा से फूले कोई चमन, कि जफा से आए कोई खिज़ां न वफा से फूले कोई चमन। उसी जलवहाए जमाल की है तलाश में मेरा हर अमल, उसी जलवहाए जमाल की है तलाश में मेरा हर अमल, कि सफ़ात ज़ात खुदा ने जो मुझे लम्हा लम्हे रखे मगर, कि सफ़ात ज़ात खुदा ने जो मुझे लम्हा लम्हा रखे मगर, है अदाए नाज हजार हाल मुझे हौसला है मगर कहाँ, तेरी एक निगाह करम पे तो फिदा मेरी जान फना मेरा तन। है अदाए नाज हजार हाल मुझे हौसला है मगर कहाँ, तेरी एक निगाह करम पे तो फिदा मेरी जान फना मेरा तन। कोई एक झलक भी छुपा गया हुआ गुम वो तेरे ही ख्याल में, कोई एक झलक भी जो पा गया हुआ गुम वो तेरे ही ख्याल में। मुझे एहतराम है राज का सो ज़बान हो गई बेसुखन, निदा आए मेरे ही नाम की तो पयाम इज़्न हुजूरी हो, निदा आए मेरे ही नाम की तो पयाम इज़्न हुजूरी हो जो इत्तफाक विसाल का तो अजीब लुत्फ का हो मिलन, हो जो इत्तफाक विसाल का तो अजीब लुत्फ का हो मिलन। एक और
वसीले के ऊपर एक नात ही मैं कहूँगी इसको है, जिसमें लोगों को पता नहीं समझ नहीं आता ये लोग वसीले को क्या समझते हैं, जैसे गुनाह की तरह फील करते हैं। तो उसी बारे में मैंने लिखा है फलसफियो मंतकी दानिशमंद है होशियार, फलसफियो मंतकी दानिशमंद है होशियार, फलसफो मंतको दानिश रविष्ट सवार, मैं के हूँ ना फलसफी ना मंतकी ना होशियार, मैं कहाँ जाती कहाँ पाती सिराते ख्वास तकाश, गर मोहम्मद के वसीले में न होती मैं शुमार। खालिक का हो महबूब जो मखलूक का वो गमगुसार, सद शुक्र के अदाद मेरे थे उन्हीं के ताबेदार। अहले नबी हुब्बे नबी में मस्त है दीवाना वार, साबित कदम वासित अमल इनमें नबी के पैरोकार, आरिफ वसीले का है जो वो मारिफत का शाहकार। हुब्बे नबी तो इश्क का बाला उबरतर कोहसार, वो के हैं कोहे अजीम मैं के हूँ सारो नजार, मेरी इत्मा में सकत और उनकी दहलीज़े दियार, पाबंद नक्शे पा मोहम्मद मेरी राहें मुश्कबार, मेरे लिए उनका वसीला दीन और दुनिया का वकार, करके सादा जिस पे अब बस नाम है अल्लाह है निगार, वो मस्ती उसकी दीद में सालिक हुआ बे इख्तियार, ये लम्हा एक सलूक का तजल्लियों का राजदार है, आरज़ू ये शौक को कुछ और हो मेरा निखार, है मोहम्मद का वसीला ही तो सूफी का सिंगार। यादे खुदा शर्टे नबी, यादे खुदा शर्टे नबी हर दो जरिया ए करार, जिक्र खुदा है बंदगी जिक्र नबी है रोजगार, गर कबूल उफ्तद जहे इज्जो शरफ बख्तियार, गर कबूल उफ्तद जहे इज्जो शरफ बख्तियार, हर सू दरूदों की निदा आती रहे यूं बार बार, लन फसामा लाही है वसीले का हिसार, लन फसामा ही है वसीले का हिसार। बहुत शुक्रिया। ये पहली कवरेज थी। यहाँ पर मैं ब्रदर साहब मसूद साहब मैनेजर एडल्ट डे केयर एडिसन न्यू जर्सी, लाइन एडल्ट डे केयर एडिसन न्यू जर्सी का शुक्र गुजार हूँ कि इतनी कलील मुद्दत में, इतनी कलील वक्त में उन्होंने ये तकरीब, शानदार तकरीब जमाल एमन साहब के एजाज़ में मुनक़द की और हल्का बाबे साहब इस कार्य न्यू जर्सी ने मुकम्मल तावन किया। जनाबे सदर हल्का बाबे न्यू जर्सी डिस्कार्डवे जनाब डॉक्टर अब्दुल साहब भी मौजूद हैं, वो साबिक़ सदारत भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपना कलाम सुनाएं और उसके बाद इख्तितामी कलमात भी सामने में अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फलक बाकी जमीन बाकी न कुछ उसकी सना बाकी, फलक बाकी जमीन बाकी न कुछ उसकी सना बाकी, सना खां ही कोई होगा न कुछ उसकी सना बाकी। क्या कह दिया मैंने? फलक बाकी जमीन बाकी न मखलूक खुदा बाकी, सना खां ही कोई होगा न कुछ उसकी सना बाकी, कोई भी नहीं होगा खुदा उस वक्त भी होगा सना खां मेरे आका का। क्या बात है विरदे मुस्तफा बाकी कि है जाते खुदा बाकी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मजमून मैं नहीं समझता आज तक किसी ने पहले बयान किया हो। बहुत खूब। दूसरा कथा सुनिए, अब्द तकमीले बयान मुस्तफा मुमकिन नहीं, शरा ये ऐसी है जिसकी इंतहा मुमकिन नहीं है। क्या कह दिया याद नहीं, सामने नहीं है। अब तक मिले बयान मुस्तफ़ा बाकी नहीं, शरा ये ऐसी है जिसकी इंतहा बाकी है। मोहम्मद मदहरे नूरे खुदाए लम यज़ल, कर सके अल्फाज इसका हक अदा मुमकिन नहीं, कर सके अल्फाज इसका हक अदा
मुमकिन नहीं। मज़ाहिया एक जैसे आपने कहा था, कुछ बचावा न मिला चोट से बच के दिल को, कुछ बचावा न मिला चोट से बच के दिल को, डॉक्टर ले गए सीने से खुरच के दिल को। अब सरेआम दिलों की है तजारत जायज, जो भी ले जाए जरा माल खर्च के दिल को। और पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, बाद मरने के भी लगते रहे धच के दिल को। बाद मरने के भी लगते, देखिए तालियां बज रही है पीछे। बिल्कुल देखिए, हाँ, कुछ बचावा न मिला चोट से बच के दिल को, डॉक्टर ले गए सीने से खुरच के दिल को। अब सरेआम दिलों की है तजारत जायज, जो भी ले जाए जरा मार खर्च दिल को। और पेस मेकर ने किया चैन से मरना भी हराम, बाद मरने के भी लगते रहे धच के दिल को। देखिए, अगर मैं ये ना कहता मरना भी हराम इशारे से और धच के, तो आपको इस शेर का वो लुत्फ ना आता जो इन इशारों से हुआ। तो मैं हजरात से भी दरखास्त करूंगा, जब शेर कहें तो उसके अंदर रूह डाला करें, ऐसे पढ़ने के लिए नहीं होता, ये किसी के जज्बात को टच करने के लिए होते हैं। इशारों को मैं खूबसूरती से पढ़ना चाहिए। एक की चार अशार सुना देता हूँ अपनी तर्ज के। जुदा इंसान से अंसर खता का हो नहीं सकता। कैसे पढ़िएगा सर? जुदा इंसान से अंसर खता का हो नहीं सकता, किसी सूरत कोई इंसान फरिश्ता हो नहीं सकता। ये मैंने कव्वालों के लिए ये 4 शेर कहे थे। इसका पहला मिसरा जो वो एक मानते हैं ना, पहले मतला जिसको वो समझते, बिला जुमो जुरा तस्लीम जो हुक्म शरीयत है, मगर जुर्म खुदाकारी तो ऐने आदमियत है। ये पहला शेर कहना पड़ता हूँ, उसके बाद फिर वो मतला शुरू करते हैं। जुदा इंसान से अंसर खता का हो नहीं सकता, किसी सूरत कोई इंसान फरिश्ता हो नहीं सकता। ये इंसान पारसा कितना भी हो, औलाद आदम है। ये इंसान पारसा कितना भी हो, औलाद आदम है। जुदाई से खताकारी का मादा हो नहीं सकता। खता जो भी थी मियादे सदा तो हो चुकी पूरी, खता जो भी थी मियादे खता तो हो चुकी पूरी। तो फिर क्यों बागे जन्नत मेरा विरसा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों बागे जन्नत मेरा विरसा हो नहीं सकता। जगह थोड़ी सी मुझको चाहिए फिरदौस से तैबा में, जगह थोड़ी सी मुझको चाहिए फिरदौस से तैबा में। अगर मालिक की मर्जी हो तो फिर क्या हो, अगर मालिक की मर्जी हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। क्या बात है। वो इसमें मसलियत कुछ भी, वो इसमें मसलियत कुछ भी, पर इतना जानता हूं मैं, न मैं आऊं तो मैशर में तमाशा हो नहीं सकता। न मैं आऊं तो मैशर में तमाशा हो नहीं सकता। कबूल ज़ुहद को है खिदमत खल्क़ खुदा लाजिम, कबूल ज़ुहद को है खिदमत खल्क़ खुदा लाजिम। जो बंदों के न काम आया खुदा का हो नहीं सकता। जो बंदों के न काम आया खुदा का हो नहीं सकता। मैं अदना अब्द हूँ उसका जो ज़ात-ए मोहब्बत है। मैं अदना अब्द हूँ उसका जो ज़ात ऐने मोहब्बत है। न हो जिसमें मोहब्बत मेरा जज्बा हो नहीं सकता। जुदा इंसान से अंसर खता का हो नहीं सकता।
किसी सूरत कोई इंसान फरिश्ता वो नहीं आप फरमाते हैं। हजरात, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, एक तो ये है कि इंतज़ाम करने वाला इंतज़ाम कर देता है। हम लोग आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस उम्र के उस हिस्से में जा रहे थे जहाँ लग रहा था कि शायद हमारे पास पता नहीं दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन देखिए कैसे कैसे जवान मर्द पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर इतना जज्बा और जोश और हिम्मत होती है कि मुख्तसर से वक्त में भी इतनी खूबसूरत महफिल सजा लेते हैं। आप हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए, आपने माशाल्लाह इसको रौनक बख्शी, आप सबका शुक्रिया। मुझे पता है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे या कहीं पढ़ने गए, मुलाजमत नहीं कर रहे, तो ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कम अज कम शुरू करना होता है, सुबह को तैयार करना होता है, फिर उनको रिसीव करना होता है, हर एक को मसरूफियत है। उसके बावजूद आप हजरात तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर साहिब किताब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इनके बारे में कुछ कह सके। मेरी ख्वाहिश ये होगी आइंदा कभी कहीं नजर किसी महफिल में आए तो फिर इनकी किताब के हवाले से इनको कुछ हम भी अपना जो तअस्सुर है, तअस्सुरात है, वो पेश कर सकें। आज हम हस्बे क्या कहते हैं ख्वाहिश कर नहीं पाए इसलिए कि किताब मुयस्सर नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह एक अर्ज रहा आपके पास, इंशाल्लाह हमारे तअस्सुरात आ जाएंगे इंशाल्लाह किसी अगली महफिल में। आप सबका फिर से शुक्रिया और आमिर भाई का खासकर शुक्रिया, इसके लिए तालियां जरूर, बहुत बहुत मेहनत करता है। खुदा करे सफ़े सरदार गान हो खाली, खुदा करे सफ़े सरदार गान हो खाली, जो मैं गिरूं तो कोई दूसरा निकल आए। मैं साथ मसूद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और उन्हें बुलाऊंगा कि वो यहाँ पर आए और सबका शुक्रिया अदा करें। साहब भाई बहुत बहुत खुशी हुई। बस मुझे 2 मिनट और चाहिए होंगे। एक हमारे पास भी हमारे लोकल शायर मशरक हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, तो मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो 2-4 कलाम खसूसन जो उन्होंने लिखी हुई है उसके ऊपर सुना दें ताकि आप लोग जरा महसूस हो सकें। अच्छा, ये मैंने उनसे पूछा था कि आप अपना कलाम सुनाएंगे, तो कहने का मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन साथ भाई ने इनको फिर से पकड़ लिया और आप महसूस होंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मैं डॉक्टर साहब को याद दिला लें ताकि लोग के सामने मैं इंतखाबी निशान डॉक्टर साहब, मैं इंतखाबी निशान सामने रख दूं। रहने को यार ये हमारे दोस्तों की फरमाइश है कि लोटे को मौजू बना करके कुछ कहा जाए। हाँ, इसके पीछे एक तारीख है। मैं लंदन गया तो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मुझे रहने के वास्ते जो जगह दी, तो उसमें मैं जब देखने गया वहाँ पर तो मुझे हाजत महसूस हुई और मैं चला गया कहाँ पर वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जनाब कुछ बोतलें कुछ जार रखे हुए थे। मैं बाहर निकल आया, आने बाद किचन में जाकर के मैंने देखा तो वहाँ एक केतली रखी हुई थी। वो केतली मैं ले गया जाकर के और मैंने लिख दिया कि इसका सही मुकाम यहाँ पर है। केतली के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई थी उससे फिर मैंने एक चंद अशार लिखे हैं, मुलाहिजा हो। मौजू जो है उसका ये लोटा अल मोहतरम, लोटा अल मोहतरम। इंसान की जरूरत है मियाँ दैर हरम में। देखिएगा वो लोटे का कमाल।
इंसान की ज़रूरत हूँ मियाँ दैर व हरम में, मस्जिद में, कलीसाओं में, क्रिया में, करम में। मेरे बगैर काम तो होता नहीं पूरा, कितनी भी करो कोशिशें होगा वो अधूरा। यहाँ की जो कागजी माशरा है उसके ऊपर लिखा है, मेरे बगैर काम तो होता नहीं पूरा, कितनी भी करो कोशिशें होगा वो अधूरा। एक गोशाए तन्हाई में रहता हूँ हमेशा, एहसास सफाई का दिलाता हूँ हमेशा। सीने में मेरे दफन है सब राज तुम्हारे। आपके जहाँ जहाँ वो साथ रहता है वो सब उसको मालूम है कि सीने में मेरे दफन है सब राज तुम्हारे, इनके भी जो आते मियाँ मेहमान तुम्हारे। झाड़ी के पसे पर्दा है हज़ार के पीछे, छत की मुंडेर पे भी दीवार के पीछे। हमदम यही साथी यही गमखार रहा है, तन्हाई का साथी यही हर बार रहा है। लोटे के बिना कोई भी पाता नहीं मफर, घर में क़याम या कभी परदेश का सफर। हमराह बना हूँ कभी तारों की छाँव में, तारीख बयाबान में, सहरा में, गांव में। गुर्बत में असीरी में यही साथ है रहता, छोड़ूंगा नहीं साथ फकत बात ये रहता। ये तो लोटा। अब देखिए ऊपर की इसकी क्या तरक्की होती है कि शाहों का वजह में ये तरहदार है लोटा। मुफलिस का गरीबी में तरफदार है लोटा। पाकीज़गी की हूँ मैं अलामत मेरे यारो, हमदम भी हूँ महबूब भी हमराज भी यारो। हर सुबह मुयस्सर है नए मुझको नज़ारे, हाथों को गसल दे के ये चेहरा भी संवारे। शाहों ने मेरे जिस्म को सोने से बनाया, इससे पहले शेर है, बनके वतन की खाक मैं भट्टी में जला हूँ, मिल जाए कदरदान तो चांदी में ढला हूँ। शाहों ने मेरे जिस्म को सोने से बनाया, रंगीन नगीनों से बसा शौक सजाया। हर दौर सलातीन के महलों में मिला हूँ, फिरौन के मदफन के असाथे में मिला हूँ। लोटे को हर एक शख्स ने सुबह किया सलाम, शामिल है इनमें गांधी और नेहरू अबुल कलाम। इसके बगैर बज न सकेगा किसी के साथ, मोहताज हो गनी हो या महबूद आया। लोटे को निशान आप इलेक्शन में बनाएं, जीते सुकून से आप सियासत भी चलाएं। लोटे को निशान आप इलेक्शन में बनाएं, जीते सुकून से आप सियासत भी जलाएं। गैरों के यहाँ जाओ तो सदा, गैरों के यहाँ जाओ सदा साथी रखना। लोटा हो ताम लोट या मिट्टी का ही बदना। आगे इसकी अफादियत थोड़ी सी और है, उसके ऊपर शाहों ने फतेह पाई है दुश्मन की फौज पर, भिजवा के फौजियों को टपकता हुआ लोटा। अब इसको जरा तसव्वुर करें कि दो फौजें आपने सामने खड़ी हुई हैं और एक फौज एक के हाकिम ने दूसरे फौज के पास लोटे भिजवा दिए उनके फौज के वास्ते, और वो इत्तेफाक से लेकर के जब सुबह गए तो वो सब टपक रहे थे वो। तो उसकी वजह शेर है ये कि शाहों ने फतेह पाई है दुश्मन की फौज पर, भिजवा के फौजियों को टपकता हुआ लोटा। और जनाब जूता चुराए जाने की रस्में खत्म हुई, गायब करे हैं सालियां नौशाह का लोटा। वक्त निकाह आप इसे साथ ही रखें, मुमकिन है महर में न कहीं मांग लें लोटा। टोटी की धार हमको सिखाती है डिसिप्लिन, पानी पे कंट्रोल सिखाता है ये लोटा। गौर से लोटे को देखिए कि इसके अंदर क्या क्या अफादियत है और क्या क्या चीजें, कि पूरा एक डिसिप्लिन का एक टोटी की धार हमको सिखाती है डिसिप्लिन, पानी पे कंट्रोल सिखाता है ये लोटा। पेंदा जो इसमें फिक्स है इसमें भी है हिकमत, पेंदा जो इसमें फिक्स है इसमें भी है हिकमत। साबित कदमी हमको सिखाता है लोटा। लोटे को कभी आप टपकने नहीं दीजिए। अभी खबरदार है, एक तरीके की आपको सबको वार्निंग है कि वो लोटे को कभी आप टपकने नहीं दीजिए। पेंदे के बिना हो तो लुढ़कने नहीं दीजिए। बैठे रहेंगे आप जो टपका कभी लोटा, केवल भी तो हो जाएंगे लोटा कभी लोटा।
इसकी बात इसको ध्यान में रखिएगा, और घर में रोटी की बहुत जरूरत होती है। ये रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान है ना जी, ये रिटायरमेंट शादी से वापस लेने का ऐलान है ना? मैं बहरा भी हूँ। गर्म पानी चला गया। बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हम लोगों को महसूस किया, और अंजुम साहब का खसूसन के वो किरण से यहाँ तशरीफ लेकर आए।